کیسے کرے جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر تو اتنا مقدس ترین پیغمبر ہے، وہ نبی تو اتنا عرفہ و اعلیٰ، برتر و بالا، اکمل و احسن، کامل، اشرف، افضل، اطیب، انور، مقدس، مطہر، مکرم، منور، معمر، معطر، بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، عطر و مطہر ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی اگر میرے نبی کی سیرت کے ترانے گانا چاہے، ساری کائنات مل کر بھی اگر میرے نبی کی عظمت و رفعت کی میناروں کی بلندی کو ناپنا چاہے تو پھر کائنات کی انتہا آ سکتی ہے، میرے نبی کی ذات کی انتہا نہیں آ سکتی۔ میرے نعرے نہیں، میں کہا کرتا ہوں میرا تو نام ہی آیا ہے، یہ آیا کا معنی زندہ باد ہے، لمبی عمر والا ہے، اللہ رسول کے نعرے، صحابہ اہل بیت کے نعرے، ختم نبوت کے نعرے، ان علماء اکابر علماء دیوبند کے نعرے، ہم تو ان کے جوتوں کی خاک ہیں، ان کے جلدیں اٹھاتے یہاں مسجد تک پہنچتے ہیں، وہاں جنت تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے ان کے نعرے۔ لیکن جب نعرہ لگایا کرو تو پھر وہ نعرہ وہ مجاوروں والا نہ ہو، وہ مجاہدوں والا ہو، وہ پھر چوری والے مجروں والا نہ ہو، وہ خون دینے والے عاشقوں والا ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مجاوروں کا مجمع نہیں، یہ مجاہدوں کا مجمع ہے، یہ لاچی دانے ریوڑی اور جلیبیاں کھانے والوں کا مجمع نہیں، یہ اکابر علماء دیوبند جو سردار بھی تھے، سردار بھی تھے، مکتب میں بھی تھے، مقتل میں بھی تھے، یہ ان کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، میں عرض کر رہا تھا کہ اس پیغمبر کا شان اور میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ میں اس نبی کی سیرت نگاری، آج لوگ اپنے اپنے انداز میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم تو عاشق، یہ تو گستاخ، وقت نہیں کہ میں لمبی گفتگو کروں، بڑی شارٹ کٹ سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میری زبان میں اس عنوان پر اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے باعث، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء جمع ہو کر بھی میرے نبی کی مدح سرائی کرنا چاہے تو کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ میں تو ایک طفل مکتب، میں تو نہ کوئی خطیب، نہ ادیب، نہ واعظ، نہ شاعر، نہ مقرر، نہ مبلغ، نہ مفکر، نہ محقق، نہ مصنف، نہ مدقق، میں تو ان اکابر علماء کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضاکار، ورکر، نوکر، چاکر، کارکن، خادم۔ میری زبان میں تو اتنی جرت، ہمت و طاقت و قوت و سخت ہی نہیں کہ میں نبی کے شان کو کما حق ہوں خراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑھیا کی ہے جس کے سر پہ کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی۔ کسی کی نظر پڑی تو پوچھا اماں خیریت، کیا کرنے آئی ہو، کیا لینے آئی ہو، کیا خریدنے آئی ہو؟ تو اس اماں نے کہا بیٹا سنا ہے آج بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس جوان نے کہا اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی، یوسف کو لینا چاہتی ہو کپاس کی گٹھڑی کے بدلے وہ اتنا کم قیمت نہیں، یوسف تو حسن کا پیکر ہے، یوسف تو حسن کا منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، میور ہے، مرکز ہے، سراپا ہے، وہ تو حسینوں کا قائد ہے، رابر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے، وہ اتنا کم قیمت نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے۔ جا اپنا وقت خراب نہ کر، یہاں تو بڑے بڑے سوداگر، بڑے بڑے بیوپاری، بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے سیب و زر کے مالک کھڑے ہیں، یوسف کو وہ لے جائیں گے تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ جا اپنا وقت خراب نہ کر، جا کے گھر کا کام کاج کر، یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں۔ تو کروڑ والوں میرے جملوں کو دل پہ لکھنا، ضائع نہ کرنا۔ اس اماں نے رو کر کہا، اپنے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پرو کر کہا بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ بات میری بھی وہی ہے
کہ میں اللہ کے نبی کی سیرت و صورت و عزت و عظمت و رفعت و منقبت، اللہ کے نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرأت، شجاعت، سخاوت، مرتبت، حکمت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، ادوار، آداب، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آتا ہے، وگرنہ میں اس نبی کی سیرت نگاری پہ کیا بولوں، میں اس نبی کے شان و مقام پہ کیا بولوں؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کے عنوان کو چھوڑو، کسی موضوع سخن کو چھوڑو، کسی آیت اور حدیث کو چھوڑو، کسی واقعہ اور تاریخ کو چھوڑو، میں اگر خالی اپنے نبی کی پوری توجہ اس ٹپڑی کو بٹھا دو، میں اگر اپنے نبی کی سیرت کے عنوانات، پوری توجہ میری طرف، نبی کی سیرت کے صرف عنوانات گنوانے پہ آؤں، ساری رات گزر جائے، میرے نبی کی سیرت کے ہیڈ لائن اور شہ سرخی نہ گزرے، ساری رات گزر جائے، میرے نبی کے موضوع سخن کی صرف عنوانات کی فہرستی مکمل نہ ہو، اس لیے کہ میرے نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے کہ جس کو کائنات کے رب نے عالم ارواح میں بیٹھ کر انبیاء کی روحوں کے سامنے بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو رب کائنات نے جنت کے حور و ملک کے سامنے بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو کائنات کے رب نے جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ لے کے بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا کروڑ والوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا، یہ صرف لفاظی نہیں، یہ صرف جملہ بازی نہیں، یہ صرف تخیل کی شاعری نہیں، یہ فقط خطابت کی شاعری نہیں، اگر اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، اہل نظر، اہل فکر، اہل عمر میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا۔ آؤ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ باہر چل رہا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کے کس عنوان کو کھولوں، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے جنت میں بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کے سامنے وصیت میں بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر امت کے سامنے بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے آرزوؤں میں بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کی بشارتوں میں بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کے بوسے لیتے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، آمد محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ۔ میرے دوستوں، میرے نبی کی سیرت کا میں کہا کرتا ہوں کہ نہ میں سانس لیتا ہوں نہ لینے دیتا ہوں، اس لیے میرے ساتھ برابری میں چلنا تاکہ میں 2 گھنٹے والی تقریر بھی آپ کو آدھے پونے گھنٹے میں سمیٹ دوں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر گلی سے گزرتی ہوں تو گلی بھی خوشبو سے مہک جاتی ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر رات کو بستر پہ سوتی ہوں تو چاند اور ستارے بھی جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر حجر و شجر کے قریب سے گزرتی ہوں تو حجر و شجر بھی جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر بکریاں چرانے جاتی ہوں تو ساری بکریاں ادب سے سر جھکا کر میرے پیچھے چلتی ہیں، کوئی بکری مجھ سے آگے نہیں جاتی۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی بھی ابل ابل کر میرے پاؤں کو چومنے آتا ہے۔ اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر رات کے اندھیرے میں مسکرا پڑے اللہ
संवारना शुरू कर दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर गुस्से में आए, जहन्नम भड़कने लग जाए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरे पैगंबर की पैदाइश के वक्त अगर अंधेरा हो तो इतना नूर फैल जाए कि चिराग की भी जरूरत न पड़े। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा नबी अगर चेहरा खोले अल्लाह व ज़ुहा की कसमें उठाना शुरू कर दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा नबी अगर जुल्फे खोले अल्लाह व लैली इज़ा सजा की कसमें उठाना शुरू कर दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा नबी अगर आंखों में सुरमा लगाए अल्लाह बाज़अल बसर व मा तग़ा कहना शुरू कर दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा नबी अगर अपना सीना खोले अल्लाह अलम नशरा लका सदरक बनाकर क़यामत तक कुरान में सबत कर दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरे पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे आसमान का चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा नबी अगर उंगली का इशारा करे अल्लाह आसमान के सूरज को रोक कर नमाज का वक़्त दोहरा दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो जमीन के दरख्त जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेने आए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो दरख्तों के पत्तों से भी मेरे नबी के कलमे की आवाज आने लग जाए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो जानवर भी कलमा पढ़ते नजर आए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। और मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर दुआ के लिए, बारिश की दुआ के लिए हाथ उठाए, हाथ नीचे ना आए, बारिश पहले नीचे आ जाए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर अबू हुरैरा की माँ की हिदायत के लिए हाथ उठाए, अबू हुरैरा घर न पहुंचे, हिदायत पहले पहुंच जाए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर बीमार बकरी पे हाथ रख दे अल्लाह उसे शफायात कर दे। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक अगर जुलैबीब के चेहरे को लगे अल्लाह चेहरे की स्याही को सफेदी में बदल डाले। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरे नबी का हाथ मुबारक अगर हजरत जाबिर की खजूरों को लग जाए, सारे अरब के कर्जे उतर जाए मगर खजूरें फिर भी बच जाए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर एक दूध के प्याले को मुंह लगाए, 70 सहाबा पिए मगर दूध फिर भी बच जाए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर 2 आदमियों के खाने को हाथ लगाए, 150 सहाबा खाए, खाना फिर भी बच जाए। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत मोहम्मद मुस्तफा, मौजूज़ात मोहम्मद मुस्तफा, सीरत मोहम्मद मुस्तफा, कमालात मोहम्मद मुस्तफा, जमालात मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर। मैंने पौना घंटा बोलना था, आधा घंटे से ऊपर बात होगी, 35 मिनट हो गए, मगर मैं तो अभी तमीज में खड़ा हूँ, वजू तो मैंने शुरू नहीं किया। और यार लोग कहेंगे, बेकार लोग कहेंगे, बरसरे बाजार लोग कहेंगे, ख्वार लोग कहेंगे, हाँ लकड़ हजम, पत्थर हजम, नाली हजम, कट्टर हजम, कौन का सब कुछ खा के तो जी ये तो देवबंदी है जी, ये तो वहाबी है, ये तो नबी के गुस्ताख हैं, ये तो नबी को मानते भी नहीं, ये तो नबी को अपने जैसा समझते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं। कौन है वो जाल की नस्ल जो नबी को अपने बराबर समझे? है कोई? नहीं। बोलो नबी और तेरे मेरे बराबर हो सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ये ख्याल अस्तो महान अस्तो जुनून, वो तेरे और मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों? वो तू दुनिया की मट्टी से बना, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। मैंने इसलिए हदीस पढ़ी, माँ बई नबी की बनी पढ़ी, रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह। मैं इससे कुछ समझाना चाहता था, इसी एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने बहुत सारे इशारे कर दिए। माँ बई नबी की बनी पढ़ी, रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे रोज़े का टुकड़ा, मेरे मिंबर और घर के दरमियान रोज़ा आयशा, हुजरा आयशा, हाँ ये क्या है? ये जन्नत का टुकड़ा है। मैं इसका तर्जुमा क्या करता हूँ, जन्नत का टुकड़ा नहीं, ये जन्नत के टुकड़ों का सरदार है, इमाम है, कायद है, राबर है, मुक्तदा है, पेशवा है, ये जन्नत के टुकड़ों से भी आला है। हाँ इसलिए तो अल्लाह ने कहा महबूब तुझे मैं ऊपर नहीं बुलाता, मैं इसी जन्नत में तुझे जिंदा रखता हूं। हाँ और हदीस में आता है कि जो जिस जगह की मट्टी से पैदा होता है
उसी जगह की मट्टी का दफन। इसलिए हमें हुक्म हुआ है जब किसी मुर्दे को दफन करो ना 3 दफा मट्टी उठाओ और 3 दफा डालो और क्या कहो मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो इसी मट्टी से पैदा हुआ था, इसी में वापस जा रहा है, इसी से उठाया जाएगा। तो माना क्या निकला, अल्लाह फरमाते मैं जिसको जिस जगह की मट्टी से पैदा करता हूँ उसकी कब्र फिर उसी जगह पे बनवाता हूँ। हाँ, तो माना क्या निकला कि हुजूर भी, अबू बकर भी, उमर भी, ये तीनों पैदा ही जन्नत की मट्टी से हुए, वापस भी जन्नत में गए, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी पहले दस में बैठा मैं वो मौजूद शुरू कर रहा हूँ। मेरे आज दिल में था कसम खुदा की मैं आज खिलाफत रास्ता पे लेकिन ये मौलवी साहब ने करने की सीरत और खत्म नबूवत में रहना है। चलो मैं तेरी मर्जी आशिर फीस तुम्हें देनी है इसलिए उनकी मानना पड़ती है। बहरहाल वो सब रहा इंशाल्लाह मैं कभी आपको अपना एक मुनफरिद उन्वान है मेरा खिलाफत रास्ता पे। आज दिन को मैंने दीनपुर में 12 रबीउल अव्वल का बहुत बड़ा जलसा था, वहाँ भी मैंने उस उन्वान पे बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा इतना मुकद्दस तरीका मेरी जिंदगी का सरमाया है वो उन्वान। पहली दफ़ा 2004 में मैं साउथ अफ्रीका के बड़े 5-4 मदारस हैं, दारुल आज़ाद, दारुल ज़करिया, दारुल स्पिंगो बीच, दारुल डरबन, दारुल न्यूकासिल, दारुल महमूदिया स्प्रिंग। मैं वहाँ 2003 दिसंबर और 4 जनवरी 2 महीने के लिए मैं मुनाज़रा पढ़ाने गया था रद्द रफ्सियत पर। तो वहाँ पर अल्लाह पाक ने इल्हामी एक मुझे गुफ्तगू दी थी, किसी किताब में ना मैंने पढ़ी है, जब सुनेंगे आपने भी नहीं पढ़ी होगी इंशाल्लाह। और मैं जब वो उन्वान छेड़ता हूँ ना मैं पहले कह देता हूँ कि अगर कोई 100 साल का बुजुर्ग भी बैठा है ना मेरा उसे भी चैलेंज है, अगर जिंदगी में कभी सुना हो तो मुझे बताना, लेकिन इंशाल्लाह कभी सुनाऊंगा। और वो इतना मुकद्दस उन्वान है। हाँ, अल्लाह ने 4 आयात जो पुराने सूरह बकरा के शुरू में है, मैंने उन चारों को अबू बकर, उमर, उस्मान, अली पे तकबीर दी है और फिट किया है। रब मोहम्मद की कसम मस्जिद के सेर में खड़ा हूँ, मिंबर पे खड़ा हूँ। पहली दफ़ा जब 2004 जनवरी में मैंने जोहान्सबर्ग में वो बयान किया, उसी रात अल्लाह ने मुझे अपने नबी की भी, नबी के 4 यारों की भी ज़ियारत की। वो इतना मुकद्दस उन्वान है। शुरू में मेरा दिल कर रहा था लेकिन मैंने देखा मौलवी फारूक ने अंधेरा किया हुआ है, पूरी कॉन्फ्रेंस का पूरा कर 2000 के पीछे। हाँ, तो मैंने कहा छोड़ो यार, बेज़ौक लोगों में ज़ौक वाली गुफ्तगू क्या करें। अल्लाह करेगा अल्लाह उसको भी थोड़ा सा वो तजर्बा एक्सपीरियंस दे देगा ताकि वो इस कंजूसी से बच जाए। यार हमारी फीस से 2-4 हज़ार काट दिया करो, लेकिन कम अज़ कम मजमा हमें दिखे, हम मजमे को दिखे। ये क्या ऐसे लगता है जैसे मगर एक बात किसी ने दर्ज रख दिया जैसे अचानक ऐसा नहीं होता। माशाल्लाह आर्मी मस्जिद पाक खत्म नबूवत की खिदमत में पूरी दुनिया में देखता हूँ, मैं पूरा अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा दुनिया घूमता हूँ, काबे के रब की कसम मस्जिद में खड़ा हूँ। मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे आर्मी मस्जिद पाक का मुबल्लिग खर्च करता है। इनकी इतनी खिदमत, ये करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च करते हैं इंसान, इतने इनके मुबल्लिगीन, जमात, लिटरेचर, जमातें और अखराजात। हाँ, इसलिए आपका तो एक ज़ौक है, आपने बड़ी बड़ी मिलियन मार्च कराए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें कराई, अपने इस नाम को फराम करो, अपने इस नाम को तमाम बख्शो और ऐसा पता चले कि वाकई खत्म नबूवत वालों की कॉन्फ्रेंस है। इस पे सिर्फ तुम्हारी नज़र नहीं है, इस पे दुश्मन की भी नज़र होती है, इस पे गैरों की भी नज़र होती है। हाँ, वो कहेंगे आस्ते आस्ता लो हो रहे बेचारे, आस्ते आस्ता बैठ रहे, देखा ना जब ये हो गया नहीं। अगर मुकाबला करना है तो फिर मुकाबले के लिए मुकाबले के पूरे हथियार भी चाहिए। कह दो इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तितामी मराहिल की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि रब्बे कायनात ने अपने पैगंबर को पैदा ही जन्नत की मिट्टी से किया। ये भी एक अलग उन्वान है मिन अनफुसिहिम पर। मैं कभी बोलूँगा कि वो हम में से तो है पर हम जैसा नहीं। क्यों नहीं? उसकी भी हज़ारों मिसालें हैं, हदीस और रिवायात मौजूद हैं, मगर मैं अपने उन्वान पे आता हूँ कि उस नबी की सीरत के अगर मैं सारी रात खाली उन्वान गिनवाने पे आऊँ, रात गुजर सकती है, मेरे नबी की बात नहीं गुजर सकती, क्योंकि मेरा नबी सारी कायनात के नबियों का सरदार बन कर आया। मेरा नबी सारी कायनात के नबियों का इमाम बनकर आया। मेरा नबी सारी कायनात के नबियों की खातम और मोहर और खत्म नबुव्वत का ऐलान बनकर आया। और मेरे पैगंबर ने खुद फरमा दिया कि मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। मैं मिर्ज़ा दज्जाल और कज़्ज़ाब और कादियानी और उनके पैरोकारों से कहता हूँ कि तुम सादा लोग मुसलमानों को चक्कर देने की कोशिश करते हो कि खत्म कमाना मोहर है, खत्म कमाना खत्म करने वाला नहीं। मैं एक सेकंड के लिए अगर तेरे दखल को, तेरे फरेब को, तेरे धोखे को, तेरे फ्रॉड को, तेरे श्राद्धता को अगर मैं एक सेकंड के लिए कबूल भी कर लूं कि ठीक है खत्म कमाना मोहर, तो फिर मुझे पैगंबर की हदीस का जवाब दे कि मेरे नबी ने तो इस खातम की वजाहत में कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो, मेरे बाद नबी कोई नहीं,
ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। और ये फितना बड़ा मुख्तसर इंसाइक्लोपीडिया पेश करना चाहता हूँ, बायोग्राफी बायोडेटा क्या कुछ सवाल मुख्तसर। मैं शुरू में कहा कि मैं बड़ा इख्तिसार से बात करता हूँ, मैं उस कोराला मौलवी कहनी ये 1.5 घंटा तो रखती है भी तकलीफ 15 मिनट बाकी बट्टा हूँ इंतजरता हूँ। मैं टू दी पॉइंट लहरों की तरह चलता हूँ और अपनी बात 2 घंटे वाली आधे घंटे में समेट देता हूँ। इसलिए पूरी तवज्जो रहे। मैं मिर्जा कादियानी दज्जाल और मलून और सिंधी को काफिर और लाहकी और मजदूर के लिए भी सिर्फ 5-7 मिनट आपको दूंगा ताकि मैं उसका मुख्तसर इंसाइक्लोपीडिया आपके सामने पेश करूँ कि कहानी कहाँ से शुरू हुई। जब लंदन में मैंने कुछ साल पहले पिछले 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल जाता हूँ, प्रोग्राम होते। मैं एक दफ़ा म्यूजियम में गया वहाँ लंदन की नेशनल लाइब्रेरी में, वहाँ पे एक बुक आज भी रखी है जिसका नाम है द अराइवल ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, द अराइवल ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। कि जब ब्रिटिश एम्पायर वायसराय इंडिया में दाखिल हुए तो उसने सारी हिस्ट्री और दास्तान और कहानियाँ लिखी कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसने कराया, कौन ने मामलत की। बहुत सारे गद्दी नशीन भी आए, बहुत सारे चौधरी वडेरे भी आए, बहुत सारे लैंडलॉर्ड नवाब भी उसमें आए जिन्होंने अंग्रेज़ों की टोटी की और जागीरें ली और मुरब्बे लिए। आज भी तेरे मुल्क में कोई कहता है मैं मखदूम हूँ, कोई कहता है मैं नवाब हूँ, कोई कहता है मैं सरदार हूँ, कोई कहता है मैं जागीरदार हूँ। ये सारे उन अंग्रेज़ों के घोड़ों को खरखरे मारने वाले थे जो उनके सामने जाकर जानू तलमुस टेकते थे और इनको जागीरें और खिलमतें मिलती थी। पूरी तवज्जो में उस लंबी दास्तान और तारीख और हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, मैं उन औरात को नहीं पलटना चाहता। मैं मौजूद सुखन पे आना चाहता हूँ कि ये मिर्ज़ा कादियानी आया कैसे, टपका कहाँ से, ये बरसाती मेंढक कहाँ से निकला। मैं हल्का सा बायोग्राफी बताता हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेज़ ने, वायसराय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए जब अंग्रेज़ ने इंडिया पर कब्जा किया, अब वो कब्जा तो कर बैठा अपने जोर बाजू पर, अपनी ताकत पर, अपने असले के जोर पर, अपनी फौज के जोर पर, अपने पाउंड के जोर पर, अपने डॉलर के जोर पर उसने कब्जा तो कर लिया। लेकिन आगे उसने देखा कि इंडिया पे कब्जा रखना आसान नहीं है, इस कब्जे को बरकरार रखना आसान नहीं है। क्यों, वजह क्या थी ये भी बताता जाऊं और तुम्हारा सर फखर से बुलंद करता जाऊं। वजह ये थी कि मेरे और आपके अकाबिर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का खानदान सामने सद्दे सिकंदरी बनकर आया। शाह अब्दुल अजीज थे, शाह अब्दुल गनी थे, शाह इसहाक थे, शाह इस्माइल थे, सैयद अहमद शहीद थे, हजरत शेखुल हिंद थे, मौलाना कासिम नानोती थे, उलमाए फरंगी महल थे, उलमाए लुधियाना थे, उलमाए पटना थे, मुख्तलिफ उलमा मौलाना जाफर थानीसरी, मौलाना याया पटनाली और मुख्तलिफ उलमा थे जिन्होंने अंग्रेज का रास्ता रोकने के लिए अपने आप को सद्दे सिकंदरी बनाया। तो जब अंग्रेज ने देखा कि इनके पास तो एक जज्बे जिहाद है, अगर इन उलमा ने अपनी आवाम को जिहाद के नाम पर उठा लिया, खड़ा करके हमारे मुकाबले में लेने पर कामयाब हो गए, तो फिर हम इनका मुकाबला हमारी ना फौज कर सकती है, ना हमारे टैंक और तोप कर सकते हैं, ना हमारी ये आर्मी कर सकती है। इनका मुकाबला करना आसान नहीं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर बहस कराई गई कि जिहाद का रास्ता कैसे रोका जाए। पहले नंबर पर तय हुआ कि कोई मौलवी खरीदा जाए, पूरी तवज्जो रखना, कोई मौलवी खरीदा जाए जिस मौलवी से ये फतवा दिलवाया जाए, कोई बड़े से बड़ा मौलवी हो जिससे फतवा दिलवाओ कि आज के बाद जिहाद हराम है। तो उसको फिर ब्रिटिश एम्बेसी ने उसी ब्रिटिश असेंबली में इसी बहस के दौरान एक पढ़ा लिखा शख्स बोला, उसने कहा आप गलत फहमी में हो, जिहाद कोई आम मसला नहीं जिसको कोई मौलवी हराम कर सके। इस जिहाद को मंसूख करने के लिए एक नया नबी घड़ना पड़ेगा, एक नया नबी पैदा करना पड़ेगा, एक नया नबी बनाना पड़ेगा, क्योंकि नबी की बात या नसे कती अगला नबी मंसूख कर सकता है। फिर इस पे काम शुरू हुआ, कमेटी बनी, पूरे इंडिया नहीं पूरे बर्रे सगीर का सर्वे किया गया। पहली कोशिश ये की गई कि कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस आलिम ढूंढो जो डॉलर और पाउंड की चमक देखकर बिक जाए और वो नबूवत का दावा करे। मैं आज खराज अकीदत का सलाम पेश करता हूँ उस दौर के उलमा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, पीर मेहर अली शाह गोलड़वी, या जितने भी अकाबिर थे जिनके ऊपर सारे अंग्रेज मेहनत
मेहनत करते रहे, पूरे बर्रे सगीर में एक मौलवी भी तैयार नहीं हुआ जो नबूवत का दावा करे और बदले में डॉलर और पाउंड ले। मैं खराजे अकीदत का सलाम करता हूँ तमाम मकातिब फिक्र के उलमा को कि कोई एक मौलवी अंग्रेज को फॉर सेल बिकाऊ नजर नहीं आया। फिर उन्होंने सेकंड ऑप्शन बी प्लान तैयार किया कि मौलवी कोई नहीं बिकेगा, नबूवत का दावा कोई मौलवी नहीं करेगा, कोई रेडीमेड बंदा तलाश करो, कोई ऐसा बंदा जो थोड़ी सी दीनी मालूमात रखता हो उसे तलाश करो। फिर तलाश किया गया, करते करते मुख्तसर दास्तान करता हूँ। फिर वहां से पादरी आए और ढूंढते ढूंढते बहुत सारे नामों की लिस्ट बनाई। फिर मीटिंग हुई, 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए। फिर मीटिंग हुई, उनमें से एक नाम इस मिर्जा काने दज्जाल मलून का मुंतखब किया गया कि ये माशी तौर पर कमजोर है, ये एक जूनियर क्लर्क है, ये 10 रुपए 8 रुपए महीना तनख्वाह लेने वाला एक मामूली सा डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का मुलाजिम है। इसे लालच को खरीदना आसान, उन्हें भी पता था कि सरकारी लोगों को खरीदना आसान होता है। आज तक वो दास्तान चली आ रही है। तो वो पादरी गया और जाकर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के ऑफिस में उसने मिर्जा कादियानी से इस मलूम से मुलाकात की, मुज़ाकरात किए, मामला तय हुए। इसने कहा ठीक है मैं दावा करूंगा, लेकिन मैं अचानक नहीं, स्टेप बाय स्टेप करूंगा। मैं बारी बारी पहले दावा करूंगा महदियत का, फिर दावा करूंगा मसीहियत का, फिर दावा करूंगा जिल्ली बरूजी नबूवत का। उन्होंने कहा एग्री विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसने नौकरी से इस्तीफा दिया, घर पहुंचा। जाओ सीरत महदी पढ़ कर देखो, जाओ बराहीन अहमदिया पढ़कर देखो, जाओ मिर्जा कादियानी की जाती लिखी हुई किताबें पढ़कर देखो। जब ये मिर्जा मलून घर पहुंचा नौकरी छोड़कर, तो बाप ने पूछा कि बेटा नौकरी क्यों छोड़ी, बेरोजगार हो गए हो, रोटी कहां से खाएंगे? तो मिर्जा कहते हैं अब्बा फिक्र न कर, मुझे इससे अच्छी नौकरी मिल गई है। ये वो मलून है, ये वो मरदूद और सिंधी है जो पिता चंद टकों पर, चंद पौंडों टाटों पर, और उसने कहा कि मैं नबूवत का दावा करूंगा। उसके बाद आया मैदान में, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पलटना शुरू कर दिया। मसीहियत, नादियत, जिल्ली बरूसी मुख्तलिफ चक्रों से लगाता हुआ आखिर नबूवत का दावा किया। और फिर अंग्रेज ने जो ड्यूटी लगाई थी ना, ड्यूटी वो भी बड़ी मुख्तसर थी। 2 काम अंग्रेज ने इसके जिम्मे लगाए थे। 2, एक कि तूने मुसलमानों को तैयार करना है कि जैसे अल्लाह रसूल की इताअत फर्ज है वैसे अंग्रेज की इताअत भी फर्ज है। एक तो ये कहना है मुसलमानों को, और दूसरा कहना कि आज के बाद जिहाद हराम, जिहाद का हुक्म मैं बतौर नबी मंसूख करता हूँ, ये कहना है मुसलमानों को। और उसने आखिर वही 2 काम किए। मुसलमानों को कहा कि अंग्रेज की इताअत तुम पे फर्ज है, और जिहाद के लिए कहा कि अब इस्लाम में जिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है, ये हुक्म मंसूख हो गया है। तो अंग्रेज का वो खुद काश्त का पौधा जिसको अंग्रेज ने खरीद कर नबूवत का निशान उसे देकर ग्राउंड में उतारा था, मैं हैरान हूँ। चलो उस वक्त तो उनकी मजबूरी थी कि वो बिके। आज जो अपने आप को मिर्जाई और कादियानी कहते हैं, इन बेचारों की क्या मजबूरी है। मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूँ अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए मिर्जाइयों, अल्लाह के लिए, दूर नहीं, सिर्फ मिर्जा कादियानी की जिंदगी का तो मुताला कर रहा कि मिर्जा कादियानी नबूवत दूर की बात, इंसान कहलवाने का भी हकदार है नहीं। अगर मिर्जाई तासुब का चश्मा उतार कर मिर्जा कादियानी की जाती जिंदगी को मुताला करें, रब मोहम्मद की कसम मुझे यकीन है कि वो मिर्जा कादियानी पर करोड़ों लानतें भेजकर मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए कि वो नबूवत तो दूर की बात, वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। क्यों? वो कभी अपने आप को कहता है मैं इंसान हूँ, कभी कहता है मैं बेईमान हूँ, सॉरी, कभी कहता है मैं कीड़ा हूँ, हाँ, कभी कहता है मैं औरत हूँ, कभी कहता है मैं मर्द हूँ, कभी कहता है मुझसे हम बिस्तरी हुई, कभी कहता है मैं खुद हामला हो गया, कभी कहते हैं अपने पेट से मैं खुद पैदा हुआ, कभी कहता है कि जनाब शर्मीला इतना था, हाँ, शाहीन सफदर हुआ मौलाना अल्लाह वसाया साहब, और उससे भी पहले मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत
मौलाना मंजूर चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह, जब मैं बड़ी पुरानी बात है 1980 की दहाई में हजरत दरखास्ती के खानपुर मसरूम में मैं ज़ेर तालीम था और हजरत दरखास्ती से भी मुझे 5 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह दौरा तफसीर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। उस वक्त वो छुट्टियों में दौरा रखते थे। अल्लामा खालिद महमूद साहब, मौलाना मंजूर चिन्योटी साहब, अल्लामा अब्दुल सत्तार कौसरी साहब और मौलाना मंजूर चिन्योटी, ये सारे हजरात आते थे। तो हजरत चिन्योटी साहब भी यही बात कहा करते थे कि वो बेचारा शर्मीला इतना था कि हाँ, जब भी कोई औरत सामने देखता ना बचपन में तो नीचे शलवार तो होती नहीं थी, कुर्ता बड़ा होता था तो शर्म के मारे ऊपर करके मुंह छुपा लेता था। नीचे सब कुछ है, शर्म आ रही है, मुंह छुपा रहे। ये ऐसी उल्टी गंगा में बहने वाला बेईमान और वो मुसलमानों को गुमराह करे कि मैं नबी हूँ, हम तुझे इंसान मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए आओ आज ये तहैया करो, करोड़ लैया बखर के मुसलमानों के आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत जिस तरह मेहनत कर रही है, पूरी दुनिया के कोने कोने में जाकर खत्म नबुव्वत का दिफा और कादियानियत का नाता रास्ता बंद कर रहे हैं। जब भी तुम्हें ये आवाज दे या इसी तरह जैसे मैं खराज अकीदत का सलाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत को करता हूँ, बिल्कुल वैसे कायद जमीयत मुफ़क्किर इस्लाम बदले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान को भी मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि जिसने 2018 में जब एक मखसूस हुकूमत आई तो मेरे कायद ने अपनी दूरअंदेश, अपनी दूरबीन उकाबी नजरों से पहचान लिया कि ये किसी झंडे पे आ रहे हैं और इधर उधर वजीर मुशीर कादियानी बनाए जा रहे थे। तो मेरा और आपका कायद उसी वक्त जुलाई 2018 से उठा, कराची से लेकर पिशावर तक, कोयटा से लेकर गिलगित तक उसने तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत मिलियन मार्चेस करके पूरे पाकिस्तान के जवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों को खत्म नबुव्वत का चौकीदार बना दिया। करोड़ वालों बताओ, अगर अब भी कोई जरूरत पड़े, मौका आए, कोई लॉबी, कोई एजेंसी, कोई अगर मुनाफिक इक़्तिदार में रहने वाला नबी की खत्म नबुव्वत पर डाका मारने की कोशिश करे, तो इन्हें नामूस रिसालत के कानून को बदलने की अगर कोई कोशिश करे, अगर तुम्हें मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत और कायद जमीयत आवाज दे तो फिर लब्बैक कहोगे? खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि खत्म नबुव्वत के लिए हमारा तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान है, हम जान दे सकते हैं, लेकिन नबी की खत्म नबुव्वत पर आज नहीं आने देंगे। लेकिन करोड़ वालों, अगर तुम अपने वादे पे पक्के रहे तो फिर मैं कायदीन खत्म नबुव्वत की मौजूदगी में तुम्हें एडवांस कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की धरती पर कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो नामूस रिसालत के कानून को छेड़ सके। नाराए तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, शहदाए नामूस रिसालत, शहदाए नामूस रिसालत। मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद टूटे फूटे मारूज़ात पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए आखिर में हस्बे रिवायत कहना चाहता हूँ कि थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है, कलम है आबला पा, मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी है।